Just write in the chat box. If you can just see me, can you write in the chat box कि yes sir you are quite audible? If I am audible, just a minute. Okay, so let me check my audio as well. Yeah, let me check my audio as well. I think I am quite audible as well as visible. चलिए so क्या हाल चाल है आपके? And first thing first, I would tell you. So from now onwards, every week or after every 10 days, I will be taking doubt session. That can be of GMeet session specific to your syllabus, PYQ, and what are the difficulties you are facing, because many of you are facing कि सर सिलेबस में यह टॉपिक कौन बुक से पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है, इसके PYQ कहाँ से क्या करने हैं, कैसे मुझे आंसर राइटिंग करना है, वगैरह वगैरह जो भी है. So for that we can have different session. You can even talk to me directly. You can personally ask me. You can chat among your friends from the chat box as well. So without any delay, let's start the class. Okay, Vivek. So let me allow to share the screen. I will be waiting around 1 minute so that more people can join. Okay, so I am now presenting the screen. So is screen visible? If screen is visible, just let me know. Yes sir, screen is quite visible, and we are doing micro class 19. So I will be waiting for 30 seconds. Okay, Linthoi Chanu, very good. Ashwini, very good. ठीक है. So people who are new to us, sir, I have had match. Please, Muskan, let's not talk these things. Let's focus on subject things. Screen visible. Okay. So whenever I am teaching you, please talk of subject thing and what you can see on the screen. Let's focus on screen. Let's not talk other things. It creates lots of trouble to other people. It distracts from our topic. Okay. So let's not talk on other things. चलिए, I will not be taking any doubt other than our topic, other than economics what I am teaching. Please, कि सर ये कहाँ से पढ़ूं, वो टॉपिक कहाँ से पढ़ूं, ये बुक कैसे पढ़ूं, because for all those things I have already made video separately and you can ask me on the Telegram as well. Personally, you can text me. Hello बरसारानी, प्रणाम प्रणाम, जय जगन्नाथ. चलिए, so people who are still waiting for your friends to join, चलिए solve कीजिए and find dead weight loss. You are given 59 seconds. Your time starts now. What is the value of dead weight loss? I will meet you after 59 seconds. Your time start now. This is your dead weight loss. So what will be the answer? Please. एक काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा आपका. जल्दी से बताइए. एंड टू डू, आज हम ये सब करने जा रहे हैं. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्टिक, टू पार्ट टेरिफ, इंटरटेम्पोरल चॉइस, पीक लोड प्राइसिंग, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे एक और न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे. सो यू आर गिवन 59 सेकेंड्स. योर टाइम स्टार्ट नाउ. प्लीज सॉल्व दिस क्विकली. गो अहेड. None of, okay, Abhinav Gupta is replying 600. No, Abhinav, I am asking to calculate dead weight loss. डेड वेट लॉस में यह शेडेड एरिया आएगा. हेलो वैष्णवी, हेलो. दोनों के आंसर गलत हैं. सर डायग्राम इज नॉट क्लियरली विजिबल. इज इट सो? चलिए मैं डायग्राम को थोड़ा जूम कर दे रहा हूं. टेक योर टाइम. नो, इट्स क्लियरली विजिबल. You have to calculate dead weight loss, and here dead weight loss is your shaded area.
Here your price, here your quantity. I think Anushka is very correct. Linthoi Chanu is very correct. Hello sir, namaste. Jai Jagannath. नमस्ते नेटफ्लिक्स, हेलो। हाँ चलिए, तो मैं सॉल्व करूंगा। देखिए, डेड वेट लॉस का सिंपल सा मतलब है, एक लाइन में मैं बताऊं। अगर डेड वेट लॉस आपको कैलकुलेट करना हो, सो हाउ मच इट इज परफेक्ट कंपटीशन माइनस मोनोपोली। इफ इट इज नॉट परफेक्ट कंपटीशन, इट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन, और मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, जो भी लो। तो परफेक्ट कंपटीशन में आपका P इक्वल्स टू MC होता है, राइट? प्राइस इक्वल्स टू MC। सो ये था परफेक्ट कंपटीशन के टाइम में, इट वाज 40 आउटपुट एंड माइनस मोनोपोली। तो मोनोपोली का आउटपुट कैसे डिटरमिन होता है? MR इक्वल्स टू MC। दिस इज योर MR एंड दिस इज योर MC। यहाँ पर आउटपुट डिटरमिन होगा, राइट? और यहाँ प्राइस। तो आउटपुट है यहाँ पे 40। मैं यहाँ लिखते जाऊंगा ताकि आपको थोड़ा ईज हो, आपको थोड़ा ईज हो। वी आर डूइंग दिस and people who are new to us, they can watch previous lecture as well, otherwise you can continue with us. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा परफेक्ट कंपटीशन का और यहाँ पे मैं लिखूंगा मोनोपोली का। तो क्वांटिटी परफेक्ट कंपटीशन में 40 था, मोनोपोली में 20 था। ऐसे भी लॉजिकली भी मैं प्रूफ आपको कर सकता हूँ, ठीक है? और क्या हुआ? प्राइस 20 था मोनोपोली में, यहाँ पे क्यू लिखेंगे, यहाँ प्राइस लिखेंगे। प्राइस 20 था और वहां पर हो गया 60। नाउ लेट्स कैलकुलेट डेड वेट लॉस। तो व्हाट इज डेड वेट लॉस? डेड वेट लॉस का सीधा सा मतलब है कि लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। तो फ्रॉम द डायग्राम एक ईज हो जाता है। अगर यह आपका डिमांड कर्व है और यह आपका MR कर्व है, यहां से डेड वेट लॉस हम कैसे निकालते हैं? जितना भी परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच का गैप रहा हो, उस लाइन के गैप को देखेंगे क्वांटिटी के और लीनियर डायग्राम के लिए, और उसके प्राइस के गैप को देखेंगे। तो यह हमारा यहाँ मिल गया, राइट? क्वांटिटी का गैप यह है और प्राइस का गैप यह है। इन दोनों के बीच जो ट्रायंगल बनेगा, दैट विल बी योर डेड वेट लॉस। तो यह ट्रायंगल के एरिया को निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री बना। तो हमारा बेस दिया हुआ है, यह 20 है, ये 40 था, ये 20 था। तो 40 माइनस 20, यहाँ 20 हो गया। 1/2 इंटू 20 इंटू हाइट। हाइट हमारा क्या है? ये 20 था, ये 60 था। तो 60 माइनस 20, हाउ मच? 60 माइनस 20, 40। तो 2 से 10, 40 इंटू 10, 400 इज द करेक्ट आंसर। ये होगा आपका डेड वेट लॉस। ओके, थैंक यू अभिनव, वेरी गुड। वर्षा रानी प्रधान, वेरी गुड। ऑल ऑफ यू हैव रिप्लाइड वेल। तो समझ में आ गया, ऐसे कैलकुलेट करते हैं डेड वेट लॉस। सिमिलरली व्हेन योर एडवांस microeconomics will be going on after the completion of syllabus once, there we will see non-linear, यह तो linear है, there we will see non-linear, इस तरह से डायग्राम रहेगा। so there also we can calculate, we have to find the area of shaded region, ठीक है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ डेड वेट लॉस का। I think I will get here, let me see once if it is there or not। मिल जाए यार, कहीं तो होगा। चलिए कोई नहीं, हाँ ये देखिए। सो फॉर दिस, सो हाउ वुड यू कैलकुलेट? हियर यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। इस एरिया पे हमें देखना होगा, हमें इंटीग्रेशन से निकालना होगा लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर इज नथिंग बट द डेड वेट लॉस। क्लियर? सर व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन? अभिनव गुप्ता, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन, देखिए this is your demand, this is your supply, this is your producer surplus, this is producer surplus, this is consumer surplus। ठीक है अभिनव, इज इट क्लियर? अगर यहीं पर हमारा मोनोपोली आ जाएगा तो मोनोपोली क्या होगा? इस तरह से होगी कुछ। जब यहाँ पे आएगी, अगर हमारा मान के चलिए मोनोपोली, और ये आपने सप्लाई कर लिया है, सप्लाई कर भी नथिंग बट योर MC, राइट? सपोज दैट। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक? MR MC यहाँ पे इक्वल हुई, ये यहाँ हुई, ये यहाँ हो जाएगी। तो प्राइस आपका यहाँ से ये प्राइस बढ़ जाएगा और ये क्वांटिटी घट जाएगा Q1 से Q2, एंड ये जो बनेगा बॉक्स, दिस इज योर लॉस्ट डेड वेट लॉस। ओके अभिनव? सर इन विच यू डेड वेट लॉस कैलकुलेटेड। ठीक है अभिनव यार, कैलकुलेट कर लो, यह तो इजी है। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। यहां पर MC कर्व क्या है?
कांस्टेंट दिया हुआ है, तो एमसी कर्व कांस्टेंट जब रहेगा तो इस केस में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए सप्लाई कर्व हमें चाहिए होगा, राइट? सो इफ एनीबडी हैज एनी डाउट फ्रॉम दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल erase it and will take the doubt of Abhinav. Abhinav has asked very good question. हाँ, तो देखिए ओके चलिए ठीक है, मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसको भी इरेज कर दे रहा हूं। चलिए, सो हियर यू कैन सी दैट पहले आपको क्या बताया गया है, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकलता है, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर, तो यहां ना जाके यह डायग्राम यहां है, राइट? तो इस केस में क्या होगा, यहां पर जो प्राइस लाइन रहेगा इसके नीचे वाला एरिया, इसके नीचे वाला एरिया, दिस विल बी योर कंज्यूमर सरप्लस एंड दिस विल बी योर प्रोड्यूसर सरप्लस। क्लियर? यूजुअली क्या होता है, हम लोग एमसी ऐसे लेते हैं, विच इज योर सप्लाई कर्व। जब आप सप्लाई कर्व लेते हो तो प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस इक्वल होता है, बट परफेक्ट कंपटीशन नेवर सेज कि प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल्स टू कंज्यूमर सरप्लस। हैव यू एवर रेड? नो। सो इन सब सिचुएशन देयर कैन बी प्रोड्यूसर सरप्लस हायर और कंज्यूमर सरप्लस हायर। यहां मैंने उल्टा लिख दिया है। अभिनव, यू हैव वेरी जेन्युइन पॉइंट। हमने क्या पढ़ाई किया, ये देखिए, आपका अगर ये एमसी कर्व है जो कि सप्लाई कर्व होता है और ये आपका डिमांड कर्व है, और जो भी इक्विलिब्रियम प्राइस होता है डिमांड एंड सप्लाई, उसके बीच के लाइन, यहाँ पे लाइन ड्रॉ किए, और इसी लाइन का जो निचला वाला हिस्सा होता है, द लाइन बाउंड बिटवीन सप्लाई कर्व एंड प्राइस लाइन, इट इज योर प्रोड्यूसर सरप्लस, एंड लाइन अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व, this is your consumer surplus, right? Now let us look at here. So this is your demand curve and this is your supply curve, and price भी आपका यही है, right? अभिनव, is it clear? Is it clear? प्राइस भी आपका यही है, तो प्राइस लाइन at this point, now very minutely you have to check, at this point मार्केट का प्राइस एमसी के बराबर है, राइट? मार्केट का प्राइस पूरा का पूरा एमसी के बराबर है, तो यहां पर प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? एनीवन? व्हाट वी जस्ट अंडरस्टूड कि लाइन above the supply curve and below the equilibrium price. So here above supply curve, okay, and below is nothing, so only this line. So here you will not find any kind of producer surplus, right? Only consumer is getting benefited. And similarly फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या था, ऑल दिस बेनिफिट इज एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोड्यूसर and all this surplus, all consumer surplus goes to the producer. Abhinav, is it clear now? So from this diagram, in the perfect competition, if it is perfect competition, all surplus you can see is consumer surplus. There is no producer surplus, zero producer surplus. Producer surplus का मतलब ही है profit. And here we have no profit because MC equals to price. Profit के लिए price must be greater than MC. Abhinav, is it any? Very good, Abhinav. Very good questions you have asked. Really proud of you. Analytical question. Very good. Thought-provoking question. Are you satisfied? Or anybody has any doubt? You can definitely argue. Great. Really salute to you. So think, logic हमारा वही है. That's why I'm telling you. Always focus on logic. देखिए, diagram कुछ भी रहे, हमने यह पढ़ लिया है कि यह जो प्राइस इक्विलिब्रियम वाला प्राइस रहेगा, बिलो उसके यह जो बिलो वाला लाइन रहेगा और अपर वाला लाइन, ठीक? अपर वाला लाइन जो रहेगा यह हमें कंज्यूमर सरप्लस देगा, नीचे वाला प्रोड्यूसर सरप्लस देगा, तो ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम, बट इट मस्ट बी बिलो प्राइस लाइन एंड अबव सप्लाई लाइन. सो हियर वी हैव प्राइस लाइन and this is also supply line, nothing is below, only one line is there. Okay, thank you. Anybody has any doubt? So here in this case you can write, you can mention in your notes as well, no producer surplus. Producer surplus is always interpreted as a supernormal profit. If you see monopolistic competition, there will be supernormal profit, but there is zero economic profit, which is the classic case, which is the most important case of perfect competition. So we can say that in perfect competition there is no producer surplus. Chaliye, thank you so much, and thank you also for asking good questions. I really appreciate. If you guys allow me, shall I proceed? और एक बार जल्दी से आप लोग ये नोट डाउन कर लेंगे. So we are going to do these topics. एक सेकंड, we are going to do this topic.
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करेंगे हम लोग, प्राइस discrimination. At NE40 we will be called it as included in PC but not in me. Yes, very good. Yes Abhinav, yes, you are true. NE, yes, I got your point. NE, not in monopoly. Yes, this amount is the part of, that's what perfect competition में इतना तक गया 40, but monopoly में only 20. So you may be thinking कि सर यह बहुत इजी फुद्दू सा क्वेश्चन आप दे दिए सर, काफी इजी न्यूमेरिकल दे दिए, बट थैंक्स टू अभिनव ही हैज रियली ओपन द फेस ऑफ सो मेनी फैसेट्स. देखिए सिंपल डायग्राम है बट एनालिसिस करो क्वेश्चंस को, इसी में थोड़ा टफ आ जाएगा, जब आप टफ एग्जाम दोगे तो थोड़ा टफ आएगा, बट बेस हमारा वही रहेगा, प्राइस लाइन के बिलो प्रोड्यूसर सरप्लस एवं कंज्यूमर सरप्लस. सर व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस इन परफेक्ट कंपटीशन? ऑल कंज्यूमर सरप्लस. चलिए वेरी गुड. चलिए मैं अब अनुष्का की बात करूंगा. फ्रॉम दिस डायग्राम फाइंड कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली. चलिए अब दोनों लोग रेडी हो जाइए. पीसी मींस परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली. So find consumer surplus and producer surplus. C as consumer surplus, P as producer surplus. In यह दोनों निकालना है in perfect competition and in monopoly as well. Time starts now. You are given 1 minute. You are given 1 minute. I think diagram is quite visible. So I want answer please. Producer surplus and consumer surplus जल्दी से calculate कीजिए. You are given 1 minute. Your time starts now 59 seconds. चलिए calculate करके बताइए तो. Let's see who calculate it. I got 2 reply. Any other person? Very good. CS consumer surplus 2000. Consumer surplus 2000. हाँ यह एरिया ऊपर निकालना था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस है आपका 40 और हाइट है आपका 80 आई थिंक, है ना? कितना है ये हाइट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना आ रहा है? किसी का 800, किसी का 1600, किसी का 3200. कंज्यूमर सरप्लस इन व्हाट? आई एम आस्किंग इन परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस तो जीरो हो गया, दैट वी सॉ. व्हाट अबाउट द मोनोपोली? कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस. दिस इज आल्सो द मेथड वी कैन कैलकुलेट. चलिए आई विल बी टेकिंग हियर, सो आई विल बी राइटिंग यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस. ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन और यहाँ पर मोनोपोली. ठीक है. चलिए ये बॉक्स हमारा रेडी है, सो आई विल बी राइटिंग हियर. सो समबडी राइट. अभिनव गुप्ता इज सेइंग CS 1600 व्हाट, व्हिच मार्केट? मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट? तो एक चीज हमने जो कैलकुलेट किया, प्रोड्यूसर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यह जीरो है. मोनोपोली कंज्यूमर सरप्लस 400. मोनोपोली कंज्यूमर सरप्लस 400. चलिए वेरी गुड. CS what? CS 1600 in which market? Vivek is writing, sir, CS 1600. Perfect competition CS 1600. Perfect competition CS 1600. तो प्रोड्यूसर सरप्लस मोनोपोली में कितना होना चाहिए? मोनोपोली में प्रोड्यूसर सरप्लस कितना होना चाहिए? हाउ मच? 1600. प्रोड्यूसर सरप्लस मोनोपोली, कंज्यूमर सरप्लस मोनोपोली
कंज्यूमर सरप्लस मोनोपोली तो 400 आ गया, यही तो डेड वेट लॉस है भाई। मोनोपोली में प्रोड्यूसर सरप्लस कितना आएगा? नन ऑफ यू हैव रिप्लाइड। मोनोपोली प्रोड्यूसर सरप्लस क्या आएगा मोनोपोली का? ये है प्राइस और ये है आपका सप्लाई कर्व, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस, इसके नीचे का एरिया। Anyone? Now my final question is that what will be the producer surplus in monopoly? आप लोग आज थोड़ा टाइम को effectively यूज नहीं कर पा रहे हैं। Last questions from you sir, from yours. Producer surplus. This is very good. Consumer surplus आपने 1600 निकाल लिया। Producer surplus in the monopoly 1000. It seems little impressive. कैसे कैलकुलेट किया अभिनव? चलिए मैंने 1000 लिख दिया, ठीक है 1000 लिख दिया हूं मोनोपोली में, इसको थोड़ा मार्क कर दे रहा हूं। सर प्लीज एक्सप्लेन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस। सत्यम प्लीज वॉच पास्ट लेक्चर। सत्यम आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट और सेकंड क्लास, प्लीज वॉच पास्ट लेक्चर। द डायग्राम यू कैन सी, दिस इज योर डेड वेट लॉस, और कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस ऐसे कैलकुलेट होता है। दिस इज योर डिमांड, दिस इज योर सप्लाई, राइट, एंड द एरिया, दिस ट्रायंगल इज योर कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस एंड दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, राइट। CS इज डेड वेट लॉस, कंज्यूमर सरप्लस इज डेड वेट लॉस। अभिनव गुप्ता, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आप समझ गए। आई थिंक लेट्स कीप इट हियर ओनली, और अपने आप में थोड़ा सा मंथन करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, यस वेरी गुड, यस वेरी गुड। तो स्टिल आई वुड लीव इट टू यू एज एन होमवर्क, इसको आप होमवर्क समझेंगे। एंड आई वुड अप्रिशिएट कि अगर इन द नेक्स्ट क्लास और somebody in the chat box on the app as well as on the telegram group just write these things, what will be consumer surplus, producer surplus in perfect comparison under in monopoly। एक पेज पे आप अच्छे से बेटर डायग्राम बना के विद डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर कर लेंगे तो ट्रस्ट मी प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस में कभी कोई गलती नहीं होगी। आई हैड प्लान्ड माय लेक्चर्स कि आज हमें बहुत चीजें पढ़ना है, सो लेट्स नॉट स्टॉप देयर ओनली, सो लेट्स डू इट क्विकली एंड इन नेक्स्ट क्लास इफ यू पीपल वांट टू बी एबल। हालांकि हमने 3 चीज निकाल लिया है यहाँ, I haven't calculated, I have calculated just dead weight loss and zero producer surplus for the perfect competition. Rest thing you have to do in the next class, so we'll meet day after tomorrow, rest up to you, okay? So shall we move to the next topic? So we are leaving it here as an homework में आपको consumer surplus, producer surplus calculate करना है for perfect competition monopoly with detailed। आप एक बार बना के कॉपी में उसके पीक्स को चैट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा वहां पे डाल देंगे, ओके, सो दैट अदर पीपल कैन लर्न। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं टॉपिक को। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आई थिंक पीक लोड प्राइसिंग। वी विल डू पीक लोड प्राइसिंग, फिर इंटरटेम्पोरल चॉइस, देन 2-part tariff, then we'll do numericals. So previously we have seen all 3 parts of 3 degree of different price discrimination, first degree, second degree, third degree। थर्ड डिग्री में क्या होता है, सेगमेंटेड मार्केट बन जाता है। सो कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाट इज पीक लोड प्राइसिंग? यस अभिनव, वेरी गुड। कैन समबडी एक्सप्लेन व्हाट इज पीक लोड प्राइसिंग? एनीवन? What is peak load pricing? You can ask anything in the chat box. People who have any doubt, you can definitely write your doubt in the chat box. क्या होता है peak load pricing? Anyone guys? Please. देखिए peak load pricing का मतलब क्या हुआ कि charging different prices at different point of time. Very very important. So let us read here. Demand for some goods and services increases sharply during particular time. For example, जैसे suppose that sweater, if you see the price of sweater in summer, same sweater, I still remember example, okay, same sweater, I was in the train and I saw it was I think April,
तो अप्रैल मंथ में मैंने देखा वन अंकल वाज कैरिंग 2 मोंटे कार्लो का स्वेटर, ठीक है। इफ यू सी go to the mall and all, minimum it will cost 3000 per sweater. So for 2 sweater it will be 3000 plus 3000 6000. Okay, so those sweater uncle carry कर रहे थे, it was in the April month. So he told कि बेटा I got it as an offer 1000 rupees का उनको स्वेटर पूरा, तो 2000 रुपीज उनको लगे 2 स्वेटर में. So even if you see the consumer point of view, तो consumer surplus यहाँ पे कितना हो गया 4k का. Similarly क्या होता है, सेम स्वेटर मार्जिनल कॉस्ट आपका सेम रहेगा. You see this marginal cost is same, right? Same marginal cost, no any additional marginal cost. Abhinav, are you getting my point? Yeah, okay. So you can see that, okay, thank you. So you can see that एक ही स्वेटर जो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसका या मार्जिनल कॉस्ट आपका गिवन रहेगा, ठीक है, सेम पड़ा होगा. बट क्या हुई, इफ यू नो कि बिकॉज ऑफ हायर डिमांड यूजुअली, हालांकि साउथ इंडिया में ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, बट इफ यू सी इन द नॉर्थ इंडिया जब टेम्परेचर काफी हाई जाएगी तो स्वेटर का प्राइस, जैकेट का प्राइस हाई होगा. बट इफ यू गेट द सेम स्वेटर प्राइस इन द समर मंथ, इट हैज वेरी लो प्राइस. हैव यू एवर सीन, इवन ऑनलाइन वगैरह में मैं आजकल भी देख रहा हूँ, गर्मियों में अमेजन वाले, मिंत्रा वाले डिस्काउंट देते हैं ताकि स्टॉक में जो भी होल्डिंग्स में है उसको खत्म करना है, राइट? तो यहाँ मैं यह कहना चाह रहा था कि तो ही टोल्ड मी कि 2000 पे मुझे 2 मोंटे कार्लो का स्वेटर मिल गया, एंड दिस आई विल बी यूज्ड इन द अपकमिंग विंटर सीजन. एंड सिमिलरली इफ यू सी द रिवर्स एज वेल. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम अदर क्लासिक एग्जांपल. यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो होता है समर में पीक पे आ जाता है. थैंकफुली वी हैव द नॉर्मल सिस्टम, ठीक है, यूनिट सिस्टम है तो नॉर्मल यूनिट है, एंड इलेक्ट्रिसिटी पीक हो गए. एम्यूजमेंट पार्क, ठीक है, एम्यूजमेंट पार्क संडे वगैरह को क्या होगा, वो हायर चार्ज करेंगे, राइट? इट्स ऑल अबाउट टाइम. तो इस तरह के प्राइसिंग में क्या होगा, वहां पर दे हैव रिलेटिवली हायर प्राइस, दे विल चार्ज हायर प्राइस. तो यहाँ पर उनका AR आएगा, डिमांड कर्व, यहाँ पे MR, यहाँ पे AR, यहाँ पे MR, दो डिफरेंट प्राइसेस हुए फॉर द सेम प्रोडक्ट. वो प्राइस लो कर देंगे. जो ही लो प्राइस करते हैं, बिकॉज दे नो द इलास्टिसिटी, सो इट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. Third degree, it is near to third degree price discrimination because they have two different MR and AR curve, but it is little different. How little different from third degree price discrimination? Because with the same marginal cost in the same market, they are not creating market, they are taking benefit of the time frame. But third degree price discrimination में क्या होता है, two separate location, two different location. यहाँ पर एक ही दिन में हो सकता है. अगर आप देखोगे, आई विल बी ऑल्सो एक्सप्लेनिंग पीक लोड प्राइसिंग के बाद मैं आपको इंटरटेम्पोरल चॉइस के बारे में, इंटरटेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में बताऊंगा, तो चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो पीक लोड प्राइसिंग का मतलब हो गया जब उसका डिमांड पीक पर हो, वेरी हाई हो, विद द limited supply. Limited means given supply. Suddenly they cannot increase the supply. To what they will do? So they will charge little higher price to reap the benefit, right? So they will have two different demand curve. Lower price तब रहेगा जब उनका डिमांड कम रहेगा, जब उनका डिमांड हाई रहेगा, so they will be charging higher price. Any doubt in understanding peak load pricing? So during peak periods, it is more profitable for the firm than charging a single price at all time. Clear? So they will charge more because it is the peak time. Clear? Shall we move to the next topic? Just write in the chat box, yes sir, all clear. So this is known as kind of price discrimination, because for the same output you are charging different price to the different customer because of peak load. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आपका. ओके, थैंक यू. सो आई होप इट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे आप लोग इंटरटेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरटेम्पोरल प्राइस. एक बार डायग्राम बना लेंगे आप लोग, जल्दी से डायग्राम बना लीजिए. इंटरटेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड पीक लोड प्राइसिंग.
Peak load pricing is practice of charging higher price during the peaks period. Peaks period means when there is very high demand of the same product. ठीक है, when there is a capacity constant, अचानक से कोई suddenly produce नहीं करेगा. There is a time frame. We have learned in the last lecture. मार्शल्स का टाइम फ्रेम था, एसआरएस था, मार्केट डिमांड कर्व था, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व था, लाइक. तो देयर इज अ लिमिटेशंस. तो मार्जिनल कॉस्ट वो अचानक से चेंज नहीं करेंगे, दे विल कीप द सेम, बट व्हाट दे विल डू, बट दे विल बी चार्जिंग हायर प्राइस टू रीप द बेनिफिट, टू रीप द प्रॉफिट. दैट इज पीक लोड प्राइस. नाउ कमिंग टू इंटरटेम्पोरल प्राइस. इंटरटेम्पोरल प्राइसिंग का सबसे क्लासिक एग्जांपल आईसी आईफोन. ठीक है, आईफोन अभी आपका मान के चलिए आईफोन, न्यू आईफोन आएगा तो प्रीवियस आईफोन का थोड़ा सा प्राइस कम हो जाता है, डिस्पाइट कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम था, मार्जिनल कॉस्ट सेम था. बट if same iPhone, suppose that today it is launched, okay, and if it is costing suppose that 80,000 rupees today, same iPhone next year with same cost of production, everything, if new version of will come, so it may cost you 60 to 70,000. Why it happens? So because it has intertemporal, means practice of separating consumers different demand function into different group by charging different price. Okay, Abhinav. Last time where did we stop? Last time where did we stop? Okay, Ravindra. Okay, sorry for little internet issue. Little internet issue was there. Okay, so I can read your all the chat now. इंटरटेम्पोरल चॉइस. इंटरटेम्पोरल चॉइस में क्या होता है, जो भी न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आएंगे फॉर एग्जांपल, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी फर्स्ट डे फर्स्ट शो. आपने बहुत सारा जगह देखा होगा, फर्स्ट डे मूवी का टिकट, प्लीज आस्क योर डाउट इन द चैट बॉक्स. फर्स्ट डे मूवी का टिकट सपोज दैट 350 रुपी रहता है, बट आफ्टर 10 to 15 days, let's say 15th day, and on एवरेज मूवी का वही टिकट 250 रुपीज हो जाता है, राइट. सेम मूवी टिकट, सेम प्राइसिंग, सेम कॉस्टिंग, एवरीथिंग. व्हाई? Because of intertemporal prices. Temporal means after a time. Intertemporal. Temporal means time. Inter means gap. So after a certain time, price discrimination start हो जाता है. The price you have paid in the beginning is quite different from the same, for the same product you will be paying at different price. Sir, you just started two-part tariff now. Yes, okay, Samir Chavla. So we stopped here at intertemporal price discrimination, and intertemporal price discrimination का classic example हमने देखा iPhone, newly launched, all the electronic products and all. ठीक है. So divide consumers into high demand and low demand group. High demand कौन करेंगे? अब ये देखिए, न्यू iPhone का हाई डिमांड कौन करेंगे? जो भी डिजिटल क्रिएटर्स होंगे, या जो भी रिच क्लास के लोग होंगे, या जिनको सिक्योरिटी इसी थोड़ा ज्यादा रहता है. ठीक है, डिजिटल क्रिएटर्स जिनको रील्स वगैरह बनाना हो, म्यूजिक बनाना हो, जो भी रहे, ब्लॉग्स वगैरह बनाना हो, तो उनका हाई डिमांड ज्यादा है. स्लोली क्या हो जाता है, जब लोगों को अफोर्डेबिलिटी थोड़ा बढ़ने लगती है, डिमांड उस फोन की कम हो जाती है, देन लो डिमांड वाले सेक्शन. तो लो डिमांड का मतलब यह हुआ कि वहां पर प्राइस थोड़ा सा कम करने से अधिक लोग आएंगे. लो डिमांड डजंट मीन लो. लो मीन इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी यू दिस. So at higher price, less people will buy, but slowly अगर price कम कर दिया हम थोड़ा, बहुत से लोग यहाँ पे खरीद लेते हैं, right? So one product, one MC, one AC, you will have different demand curve. Initially आपका higher price रहेगा, slowly price low हो जाता है because of intertemporal. Any doubt? Sameer, Abhinav, Ravindra, Linthoi. Sorry for around I think 5 to 7 minutes का हमारा gap रहा due to some internet issue. Please forget that and everything is okay. Now let us look at the two-part tariff. ठीक है, अब हम लोग two-part tariff करेंगे और हमें फिर एक न्यूमेरिकल्स भी करना है, आज हमें करके ही खत्म करना है. So two-part tariff with single consumer. इसका एग्जांपल कोई दें आप लोग? नो सर. ओके, सो हमने इंटरटेम्पोरल चॉइस देख लिया, हमने पीक लोड प्राइसिंग देख लिया. यह सब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है. दीज आर काइंड ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ओनली. नाउ लेट अस टॉक अबाउट टू पार्ट टेरिफ विद सिंगल कंज्यूमर. यहाँ पे डबल कंज्यूमर भी हो जाता है, बट एज ऑफ नाउ अभी हम पहले सिंगल देखेंगे. ठीक है, सो टू पार्ट टेरिफ का मतलब क्या हो, पहले आप लोग ये बताइए, व्हाट इज टू पार्ट टेरिफ? टू पार्ट टेरिफ को कभी कभी जो है डिज्नीलैंड डायलेमा भी बोला जाता है. DISNEY, डिज्नी
लैंड डायलेमा, डिज्नीलैंड। ओके, सो हियर कंज्यूमर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग रेजर एंड ब्लेड, आप देखोगे कि रेजर आपने एक बार खरीद लिया, वट एवर प्राइस, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, लेट्स से 100 रुपीज, बट ब्लेड की कॉस्टिंग आपको रेगुलर देती रहेगी। एक बार आप रेजर करोगे, बार बार आपको ब्लेड खरीदना है। उसी तरह फेयर फॉर रैपिडो और उबेर, यस अभिनव, यू आर ऑल्सो ट्रू। फेयर फॉर रैपिडो और उबर क्या, आप लिखो ना कि सर टू पार्ट टेरिफ, सब इंटरटेम्पोरल चॉइस और नॉट फ्री। नो अभिनव, आई डिसएग्री विथ यू। रैपिडो उबर्स में तो हम जितना बार ट्रेवल करेंगे हम पे करेंगे, राइट? या टू सम एक्सटेंट आई गॉट योर पॉइंट, व्हाट्स योर इंटेंशन, बट हियर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सपोज दैट एक एंट्री टिकट है, जब आप एंट्री जाते हो बोटिंग करने या कहीं भी, तो एंट्री एक आपको अमाउंट लिया जाता है, बट हियर what the theory is saying, consumer has a demand curve B, this is your demand curve, and firm maximizes profit by setting price P, and which will be equal to the marginal cost या फिर entry fee equals to the entire surplus, means entry fee आपको entire surplus लिया जाएगा, शुरू में ही आपसे सारा कुछ लिया जाएगा। entry fee is equals to entire surplus, this price entry fee, उसके बाद उस कंज्यूम करने के लिए बस मार्जिनल कॉस्ट। उसी तरह रेजर और ब्लेड में सपोज दैट ब्लेड बनाने में जितना खर्च होता है ऑलमोस्ट नियर टू प्राइस विल बी नियर टू एमसी, हालांकि इन रियल सेंस प्राइस इज ग्रेटर देन एमसी, बट वी कैन अंडरस्टैंड नियर टू एमसी। बट आपसे जो है रेजर से ही ज्यादा वसूली कर लिया जाता है, दैट इज ऑल द कंज्यूमर सरप्लस इज एक्सट्रैक्टेड। क्लियर सर? यू कैन अगेन एक्सप्लेन डिज्नीलैंड डायलेमा एग्जांपल। तो डिज्नीलैंड में वही है, जब आप एंट्री करोगे, एंट्री टाइम पे सपोज दैट आपसे कुछ हैवी चार्ज कर लिया गया, 200 एंट्री चार्ज, 300 एंट्री चार्ज, 400 एंट्री चार्ज, 50 रुपीज एंट्री चार्ज, ठीक है? उसके बाद आप स्मॉल स्मॉल चीजें, कोई भी झूला झूलो, कहीं भी घूमने जाओ, तो स्मॉल स्मॉल प्राइसेज आपसे लिए जाएंगे, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, और इस तरह से सपोज दैट आपने 10 डिफरेंट चीजों को एंजॉय किया है, तो 10 इंटू सपोज दैट 10, 100 रुपीज आपने यहाँ स्पेंड किया, तो अंदर का कॉस्ट काफी कम रहता है, ठीक है? बट एंट्री फी कहीं कहीं ज्यादा रहती है। बट इफ यू सी द पब्लिक थिंग्स, ठीक है, जब आप पब्लिक पार्क वगैरह में जाओगे तो एंट्री फी वहां कम होती है, 10 रुपीज, 20 रुपीज, राइट? आई रिमेंबर इफ यू गो सम ऑफ पब्लिक थिंग्स और फॉर बोटिंग, वहां पे उल्टा होता है, देयर इज नो टू पार्ट टेरिफ, सो एंट्री फी 10 रुपीज, बट वन यू स्टार्ट बोटिंग 100 रुपीज बोटिंग, 200 बोटिंग। बट जो यूजुअली मोनोपोली के केस में होता है, जो कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केस में होता है, एंट्री फी ज्यादा होती है, बट यूजेज चार्ज, उसको बोलते हैं हम लोग यूजेज चार्ज, ठीक है? USAG, usage charge, which is equals to your price or marginal cost. Fixed fare, then additional fare per kilometer distance. Yes, Abhinav, to some extent I got your point. Base fare means Gold Club, Dance Club. Yes, Vaishnavi. Yeah, Vaishnavi. Vaishnavi is your first class. Base fare plus fare per kilometer. Yes, Abhinav, I got your point. Very good. So entry में आपसे base fare ले गया, उसके बाद yeah. Usually I use very Rapido very less, so I have not that quite idea. चलिए, but what you said, I got your point. Any doubt about understanding this two part tariff? ठीक है, चलिए अब हम एक प्यारा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे, ठीक है? यह जो न्यूमेरिकल होगा सेगमेंटेड मार्केट पे होगा, और यह न्यूमेरिकल्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको क्या क्या निकालना है वो मैं पहले बता दूंगा। आपको यह निकालना है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी किस मार्केट का ज्यादा है, ठीक है? मार्केट 1 और मार्केट 2, which has higher elasticity. So before jumping here, let me ask you, anybody has any doubt in understanding two part tariff or intertemporal price discrimination or peak load price discrimination? Frequently even UPSC has asked such kinds of questions. समझ में आ गया? नहीं भी आया है तो once you can watch recorded lecture as well, उसके बाद ही समझ में नहीं आया तो you can ask me in the class as well, ठीक है? ये था intertemporal price discrimination, ठीक है? ये डिफरेंस, एंड यू हैव वन मोर दैट इज पीक लोड प्राइस। क्लियर? चलिए अब हम एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करेंगे। आई थॉट कि आज हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फिनिश कर देते, बट वी आर लिटिल डिले। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स, एक्सेस कैपेसिटी एंड ऑल, फिर हम ओलिगोपोली स्टार्ट करेंगे। ओके
चलिए, ऑल आर रेडी, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स यस सर वी आर रेडी, और न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आप लोग। तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स रहेगा, काफी इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन, मैं क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं, ठीक है। सो Q is given, Q is equals to, yes sir already, चलिए be ready। Q is given 50 minus 0.5t, यह गिवन है। मैं थोड़ा और इसको और सिंपल कर देता हूं। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी P लेफ्ट साइड में रहे तो इट इज डेंजरस। आपका Q लेफ्ट साइड में होना है, इसको आप चेंज करोगे, ठीक है, वह आपका काम है। और सेगमेंटेड मार्केट है, मार्केट सेगमेंटेड है, दिस इज द कंबाइंड, ठीक है। आई थिंक ये वाला न्यूमेरिकल हमने कर लिया था, इफ आई सी, आई थिंक ये वाला न्यूमेरिकल हमने कल किया था। हाँ चलिए ठीक है, ये कल वाला ही न्यूमेरिकल है, उसी को मैंने सेगमेंटेड कर दिया है। यह कंबाइंड आपका डिमांड कर्व है, दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है, फ्रॉम द मार्केट। इसी में डिफरेंट हमारे पास सेगमेंटेड मार्केट है, ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट जगह प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। तो एक जगह Q1 है, एक जगह Q2। Q1 इज इक्वल्स टू 32 minus 0.4 P1। Again be careful, P1 आपका राइट साइड आ रहा है, it should be left side, and 18 minus 0.1 P2, ठीक है। Be careful, इसको आपको चेंज करना होगा। And your TC is given, TC means total cost, total cost is given 50 plus 40Q, ठीक है। TC is given 50 plus 40Q, इसका मतलब यह हुआ 50 plus 40Q मीन्स टोटल, Q1 plus Q2, यह दिया हुआ है। So now you are asked which demand curve is more elastic, you have two demand curve, so find profit maximization, pi max, find elasticity of both demand curve, DD1 DD2, यह हो गया DD1 डिमांड कर्व 1 एंड दिस इज DD2 डिमांड कर्व 2 बोथ। चलिए गाइस प्लीज गो अहेड, स्टार्ट। I think for this 2 minutes will be enough, so I will be waiting 2 minutes। मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। I will meet you after 2 minutes। मैं थोड़ा प्रोसेस आपको बताऊंगा। क्या करना है आपको, जो भी मार्केट दिए हुए हैं नो प्रॉब्लम उसमें, उनमें से आपको सबसे पहले तो P इंटू क्यू के फॉर्म में बदलना है। मीन्स इसको क्या लिखना है, इसको पहले आप लोग चेंज कीजिएगा, मैं हिंट थोड़ा सा दूंगा। यहाँ पर आपको लिखना है पहले P1, तो P1 इक्वल्स टू यहाँ से चेंज करने में क्या होगा, 80 माइनस 2.5 आ जाएगा, 2.5 Q1। इसी तरह P2 को भी आप बदलोगे, इसको P2 को बदलोगे, P2 इक्वल्स टू व्हाट, वो करोगे। आफ्टर दैट यू प्लीज फाइंड TR2, क्लियर, TR1 एंड TR2। तो वहां से MR1 निकालोगे, फिर MR2 निकालोगे, और MR इक्वल्स टू MR1 इक्वल्स टू MC, MR2 इक्वल्स टू MC। फिर उसके बाद आपके पास दो डिफरेंट इक्वेशन होंगे, यू सॉल्व, यू विल गेट P1 Q1, यानी आपको P1 Q1 P2 Q2 निकालना है, फिर प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू TR1 प्लस TR2 माइनस TC, यही प्रॉफिट है। चलिए शुरू हो जाइए। इफ एनी ऑफ यू फाइंड एनीथिंग डू कमेंट इन द चैट बॉक्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 2 minutes, 120 minutes, 120 seconds, you are given 2 minutes, your time starts now। in case of any doubt you can ask the question। so you have two different market, segmented market here, ठीक है, segmented market है। एक का इलास्टिसिटी थोड़ा कम होगा, एक का इलास्टिसिटी थोड़ा ज्यादा होगा, तो आपको यह पता करना है which is more elastic and find the elasticity of both the demand curve। तो PQ उसके लिए निकालना जरूरी है। चलिए, so we'll meet you ठीक है, विल मीट यू गाइज आफ्टर 120 सेकेंड। एवरीथिंग ओके? सॉरी फॉर लिटिल, मेरा माइक थोड़ा टर्न ऑफ हो गया था एक पॉइंट, इसलिए आवाज कम आ रही होगी। आई होप आई एम क्वाइट ऑडिबल, सो यू जस्ट फॉलो दिस।
P1 P2 में आप फॉर्म करोगे, यहाँ पर P2 रखोगे, P1 एंड P2, और फिर उसके बाद आप MRMC वाला फॉर्मूला लगाओगे जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में किया था. सो आई वुड रियली अप्रिशिएट योर नेम इफ यू कुड सॉल्व. अगर एक भी स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं सो इट विल बी अ ग्रेट डील फॉर मी. प्लीज योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 1 मिनट और बचे हैं. 1 मिनट के बाद मैं यह क्विकली सॉल्व करके दे दूंगा. दैट्स डन फॉर द डे एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विथ प्राइस monopolistic competition, excess capacity, why excess capacity happened, how it is good or bad, everything we will discuss and then we'll start oligopoly. ठीक है, चलिए. लास्ट 59 सेकेंड. एनी ऑफ यू प्लीज डू फास्ट. 59 सेकेंड्स. हमने इस तरह के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी कर रखे हैं गाइज. Abhinav I think Abhinav is very correct. Yeah, Abhinav, you are the brand ambassador of live class. Mostly you really give very correct answer. Please, anyone else? I would like to just cross check. चलिए मैं अब सॉल्व करना शुरू करूंगा आपके साथ. I presume कि you guys have noted question. चलिए मैं क्विकली सॉल्व करूंगा. तो हम स्टार्ट करेंगे P1 P2 से. Q1 वहां पे दिया हुआ था तो हमारे पास P1 है. यहाँ पर P1 हमने निकाला था विच इज इक्वल टू 80 माइनस 2.5 Q1. तो P1 है जब हमारा तो TR1 आ जाएगा P इंटू Q. तो TR हमारा यहाँ से आ जाएगा 80 Q1 माइनस 2.5 Q1 स्क्वायर. यहीं से MR1 आ जाएगा. MR1 इज जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा 80 माइनस 5 Q1. ठीक है. फिर उसी तरह हमने P2 निकालना है तो P2 इज इक्वल्स टू P2 कितना है हमारा 180 माइनस 10 Q2. यहां पर से आएगा. यहां पर से आप निकाल लीजिए 180 माइनस 10 Q2. P2 इस साइड जाएगा, Q2 इस साइड आएगा, डिवीजन होगा, डिवीजन बाय 0/1 तो यहां पर ये आएगा. सो दिस कैन बी. यहां पर से हम क्या निकालेंगे अब TR2. तो TR2 होगा 180 Q2 माइनस 10 Q2 स्क्वायर. तो यहां पर से MR2 आएगा. MR2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 Q2. एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग MR2 एंड MR1? यहां तक कोई डाउट? अभिनव के अलावा और कोई बच्चे? एटलीस्ट यू सॉल्व विथ मी. एनीवन हैज एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग? MR1 और MR2 आ गया और अब हमें निकालना है MC. तो MC हमारा दिया हुआ है. MC इज गिवन. आई थिंक TC दिया हुआ है. TC को एक बार आप डेरिवेटिव निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव वी विल हैव MC इक्वल्स टू 40. तो MC आ गया हमारा 40. MR2 है, MR1 है. तो रूल क्या कहता है अकॉर्डिंग टू, सॉरी गाइज, रूल क्या कहता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रूल? सो MR इक्वल्स टू क्या होगा MC1. यह रूल है. एंड MR इक्वल्स टू MR1 इक्वल्स टू MC, MR2 इक्वल्स टू MC. ठीक है. तो चलिए अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जो भी वैल्यू है. तो 80 माइनस 5 Q1 इज इक्वल्स टू 40. क्लियर. 180 माइनस 20 Q2 इक्वल्स टू 40. यही है ना. तो यहां पर से हमारा क्या आ जाएगा Q1 इक्वल्स टू 40 अपॉन 5, 40 अपॉन 5 8. और यहां पर Q2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा Q2 इक्वल्स टू 140 माइनस 20 इक्वल्स टू 7. राइट. यहाँ पे यहाँ गया 140, ये इधर गया, ये 27. एनी डाउट? एटलीस्ट राइट इन द चैट बॉक्स की यस सर और नो सर.
तो Q1 आएगा 8, Q2 आएगा 7। अभी ना व्हाट अबाउट इलास्टिसिटी? Q1 8, Q2 7। चलिए प्रॉफिट आप लोग निकालिएगा होमवर्क। पाई का वैल्यू क्या आएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू 500। इफ यू आर गेटिंग 500 इट्स वेल एंड गुड। प्रॉफिट कैसे निकालना है? तो TR1 प्लस TR2। TR1 कैसे निकलेगा? TR1 इक्वल टू P1 इंटू Q1। Q1 हमारा आ गया 8, तो Q1 जब 8 है, ये P ही था ना। अच्छा, P का वैल्यू ऊपर है। P इक्वल टू 80 माइनस 2.5 इंटू Q1, तो P इक्वल टू आएगा Q का वैल्यू 8 है, तो 8 इंटू 2.5 मीन्स 20, 8 दूनी 16, राइट। 20 माइनस 60, तो P1 आएगा 60। और उसी तरह P2 का वैल्यू आएगा आपका P2 इफ यू सब्स्टिट्यूट Q2 इक्वल टू 7, तो 7 इंटू 10 70, 180 माइनस 70 ये आएगा आपका आई थिंक 70, नहीं 70, 180 माइनस 70 110 आएगा ना, ये 110। प्रॉफिट 550। अभिनव कैन यू क्रॉस चेक? G2 इज लेस इलास्टिक, इलास्टिसिटी आप लोग बताएं। तो व्हाट वी हैव, P1 P2 में सिर्फ सब लिख दे रहा हूं पहले अच्छे से। P1 आएगा 60, P2 आएगा 110, और TC का वैल्यू टोटल कॉस्ट, TC का वैल्यू क्या है? TC हमारा 50 प्लस 40Q, TC इक्वल्स टू 50 प्लस 40Q, Q इक्वल्स टू 60 प्लस 110 यानी 170 है टोटल Q, इतना इंटू 170, तो 50 प्लस 6800, तो 6850, यह है हमारा TC। दिस इज TC। अब हम पहले निकालते हैं TR1। सो TR1 P1 Q1 और TR2 प्लस TR2 P2 Q2, तो 60 इंटू 8 प्लस 110 इंटू 7, तो 60 इंटू 8 480 प्लस 770, राइट। 170 इंटू 40, ये कहाँ गलत हो गया अभिनव? 50 प्लस 40Q, यार कहाँ गलत हो गया? MC TC 50 प्लस 40Q, तो 50 प्लस 40Q, Q का वैल्यू है ओके Q 15 है, TC में Q 15 होगा। थैंक यू अभिनव। चलिए यार, अभिनव इज आई थिंक ओनली अभिनव इज विथ मी, एवरीबॉडी इज स्लीपिंग। इंटू 15 होगा, ये 600 आएगा ना, 600 प्लस 50 650 आएगा, करेक्ट 650। और यहाँ कितना आया? 1250 माइनस 650, 600 प्रॉफिट आ रहा है। यस, पाई इक्वल्स टू 600, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, मैं पूछ रहा था अभिनव। यस, वी आर गेटिंग 600, पाई इक्वल्स टू 600। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। एनीबॉडी इज विथ मी गाइस और एवरीबॉडी इज जस्ट स्लीपिंग? पाई इक्वल टू 600। मजा आया कि नहीं अभिनव? अब हमें अभी कहानी बाकी है, अब हमें इलास्टिसिटी निकालना है। तो इलास्टिसिटी निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मार्केट। E1 की इलास्टिसिटी dQ1 बाय dP1 इंटू P1 बाय Q1, राइट। तो dQ1 बाय P1, Q इक्वल्स टू दिया होगा ऊपर, देखिए Q इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, तो इलास्टिसिटी आ गई 0.4, और Q2 का जो स्लोप होगा 0.1। तो ठीक है, हम यहाँ पे 0.4 करेंगे। 0.4 इंटू P1 हमारा दिया हुआ है, P1 का वैल्यू 60 है और Q1 का वैल्यू 8 है, तो 60/8 क्या आएगा यहाँ से? तो इसका वैल्यू आएगा समथिंग, आई कैन सी, ये जाएगा 10, कैंसिल, 4 2 जा 2 3 जा, राइट। सो E1 इक्वल्स टू 3। ओके अभिनव, एनीबॉडी एल्स एक्सेप्ट अभिनव? इलास्टिसिटी ऑफ 1 इक्वल्स टू 3, इलास्टिसिटी 2 निकालेंगे अब, ठीक है। इलास्टिसिटी 2 इक्वल्स टू dQ2 अपॉन dP2 इंटू P2 अपॉन Q2। तो dQ2 मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ Q इक्वल्स टू, तो Q2 इक्वल्स टू ये है, इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या आएगा? 0.1, राइट। तो 0.1 हम करेंगे, 0.1 इंटू P2 का वैल्यू प्राइस 2 कितना है?
प्राइस टू यार कितना है 110 अपॉन Q2 7, ये 0 जाएगा, ये 0, तो 11/7 को अब जब आप डिवाइड करोगे तो 1 into 1 4 5 5 into 7 to 5, yes 75, ये आएगा 175 आएगा, और E1 आएगा 3, E1 आएगा 3। तो हमने एक चीज और देखा यहाँ पर, E1 इलास्टिसिटी है 3, E2 है इलास्टिसिटी 1.5, तो इलास्टिसिटी इसका अधिक है तो इसका प्राइस कम होगा। देखिए P1 कितना होगा, आई थिंक 60 है, और P2 का इलास्टिसिटी कम है तो प्राइस अधिक होगा, सो प्राइस इसका है 110। सो इट इज प्रूव्ड, जिसकी अधिक इलास्टिसिटी उसकी कम प्राइस, जिसकी कम प्राइस उसकी अधिक इलास्टिसिटी। हमने यह देखा था टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है, प्राइस अगर अधिक रहेगा तो इलास्टिसिटी कम रहेगा। क्लियर? D2 is less elastic, yes, so we can say that D2 is less elasticity, less elastic। अगर हमारे डायग्राम भी बनेगा तो अगर D2 आपका जो रहेगा वह थोड़ा वर्टिकल रहेगा, D1 थोड़ा, D1 यह रहेगा और D2 आपका कुछ इस तरह से बनेगा, यह रहेगा D2 लेस इलास्टिक। सो एक बार चैट में लिख देंगे अगर आप लोग को मजा आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास, थोड़ा बीच में इंटरप्शन हुआ, सॉरी फॉर दैट। सो डिड यू एंजॉय? देखिए एक ही क्वेश्चंस में हमने कितना चीज निकाल लिया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इलास्टिसिटी, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एवरीथिंग, कंसेप्ट ऑफ मोनोपोली, एमआरएमसी। अब इससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको करने की जरूरत नहीं है, मोर देन 8 to 10 गुड न्यूमेरिकल्स वी हैव डन इन द मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड this third degree price discrimination, right? So can you just write in the chat box, yes sir, all good, and we are ready to move to the next class, please. So in next class we will start monopolistic competition and then oligopoly, ठीक है? So that's all for the day. If anybody has not understood or if anybody did not get the answer, quickly tell me. ये प्रॉफिट आएगा 600, yes sir, understood sir, okay वैष्णवी यादव, very good, अभिनव very good, लिंथोई चानू very good। तो एक बार यह आपको रिकॉर्डेड लेक्चर थोड़ी देर में मिल जाएगी, यू कैन डेफिनेटली वॉच। आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर। आपका Q1 8 आएगा, Q2 7 आएगा, P1 60 आएगा, P2 110 आएगा, प्रॉफिट 600 आएगा, एंड इलास्टिसिटी 1 3 आएगा, इलास्टिसिटी 2 1. That means elasticity higher, lower price. Elasticity 2 is 1.5 E2. And thank class with the other topic, that is monopolistic competition. एक बार उसको आप पढ़ाइएगा from your side, just quick revision is needed. Okay? चलो guys, bye bye, take care, good night. Okay बरसारानी, चलिए, जय जगन्नाथ।